राइडर को कल दिए थे इंजेक्शन शॉर्ट एक्सपायरी से क्यों? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zanash Ahmed and I am a third year pharmacy student from Jinnah Sindh Medical University and I shall be moderating the session today. Our today's webinar is organized by our community giving back to pharmacy in Pakistan. Our community empowers the young pharmacists to grow and excel in their careers. We have experienced pharmacists, pharmaceutical researchers, educators, and industry experts who guide and provide mentorship to the young pharmacists and to the undergraduating pharmacy students. Moving towards our today's topic for today's session, which is a pharmacist-led stewardship program focusing on the pivot role of IV fluids and electrolytes. For that, we will be having two of our speakers with us today, Dr. Saad and Dr. Shahjah Khan with us. The both will provide us and will discuss with us all of the every bit of the topic with us. Okay, so let me just give a short introduction about the topic. A pharmacist-led stewardship program focusing on the pivot role of IV fluid and electrolyte
aims to optimize the use of these critical resources within the healthcare setting, designed to ensure the safe, efficient, and effective administration of IV fluid and electrolyte, while also minimizing the potential risk and reduce the unnecessary cost. By taking today's webinar, you will be able to gain the comprehensive insights into the IV fluids and electrolyte management. You will understand the critical role of pharmacist in patient care. You will learn practical strategies for optimizing pharmaceutical intervention, and you will also network with fellow professionals and industry pioneers. Okay, so moving towards the presentation for today's session, which shall be presented by two of our speakers, Dr. Shahjah Khan and Dr. Sheikh Mohammed Saad. Dr. Shahjah Khan is a critical care pharmacist from Mukhtar A. Sheikh Hospital, Multan, and Dr. Sheikh Mohammed Saad is currently working as a clinical pharmacist for allied surgery and orthopedics at Indus Hospital and Healthcare Network. I request Dr. Shahjah Khan to please begin with the presentation now. Thank you so much for you both for your time. You may now begin with your presentation. Thank you so much for such a beautiful introduction. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shahjah Khan. I'm Hospital Multan. Please, Danish, let me know. मेरी आवाज clear है? Yes, ma'am. Oh, thank you so much. So starting with our topic, हमारा topic है आज का IV fluids and electrolytes. इसमें हम cover करेंगे कि IV electrolytes के insertion में pharmacist basically क्या role play कर रहा है, critically ill patients में या general patient में hospital community में रहते हुए. Learning objectives की बात करेंगे हम. तो let's talk about first of all basic concepts. Basic concepts में हमारे पास हैं types of IV access, IV catheters, flow rates and complications. Types of IV fluids, osmolarity, fluid requirements, hydration status को देखेंगे कि how much is too much, electrolyte disorders और electrolytes imbalance. Case study discuss किया जाएगा, which is busting some common myths. So moving towards next, type of IV access देखेंगे कि electrolytes basically बॉडी में एंटर करने के लिए हमारे पास कौन से दो पार्ट्स हैं. द बेसिक पार्ट्स टू आर द सेंट्रल एंड पेरिफेरल. थोड़ी सी स्लाइड से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि हमारे पास बेसिक डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं सेंट्रल एक्सेस में और पेरिफेरल एक्सेस में. स्टार्टिंग में सेंट्रल एक्सेस की बात की जाए तो इट इज एक्सपेंसिव और पेरिफेरल की बात की जाए तो इट इज चीपर. अगर हम मेजॉरिटी केसेस में देखा जाए तो सेंट्रल एक्सेस हम उन पेशेंट्स को देते हैं जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मोबिलिटी कम होती है, इंट्यूबेटेड होते हैं, क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स होते हैं और जिनमें हमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. अगर पेरिफेरल एक्सेस की बात की जाए तो पेशेंट मोबिलिटी इस पे इफेक्ट नहीं करेगी. उसके अलावा पेशेंट जनरल लाइक एक्यूट इमरजेंसी पेशेंट्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल आईपीडी वार्ड पेशेंट्स हो सकते हैं. फ्लशिंग की अगर बात की जाए तो सेंट्रल एक्सेस में हमें हेपरिन से हर 24 घंटे के बाद फ्लश करना है अपनी आपकी कैथेटर लाइन को, जबकि पेरिफेरल में ये हर 8 घंटे बाद नॉर्मल साइन के साथ फ्लश करना है. बोर की बात की जाए तो सेंट्रल एक्सेस में जो बोर है वो बड़ा होगा, पेरिफेरल में इट विल बी स्मॉलर. टाइप्स ऑफ पेशेंट्स में इंट्यूबेटेड, क्रिटिकल और डील विद सेंट्रल एक्सेस, जबकि पेरिफेरल में हम जनरल डील कर लेंगे. कॉमन साइट्स हम नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू आपको दिखाएंगे. Next slide, please. These are some basic parts जिससे आपको क्लियरली शो हो रहा है कि पेरिफेरल एक्सेस के और सेंट्रल एक्सेस के कौन कौन से पार्ट्स हैं बॉडी में जहां से इजीली इंसर्शन की जा सकती है इलेक्ट्रोलाइट्स की. आईवी कैथेटर्स फ्लो रेट्स, इसका अगर हम कंपैरिजन करें कलर गेज और मैक्सिमम फ्लो रेट के साथ तो डिफरेंट हमारे पास गेजेस डिफरेंट कलर्स में आते हैं, डिफरेंट गेज साइज में आते हैं. जस्ट लाइक अगर हम बात करें येलो कलर गेज की तो इट्स 24 गेज और इसका जो मैक्सिमम फ्लो रेट होगा वो 30 ml पर मिनट के हिसाब से है. तो कंपैरिजन करने का मकसद ये है कि सिर्फ दिखाने का कि जो येलो कलर है 24 गेज, जैसे जैसे हम गेज का साइज डिक्रीज करते हैं हमारे पास हम मैक्सिमम फ्लो रेट को उतना इंक्रीज कर देते हैं. जस्ट लाइक अगर आप लास्ट पे देखें तो ऑरेंज अगर हमारे पास 14 गेज की है तो इसका मैक्सिमम फ्लो रेट हमारे पास इंक्रीज होके 270 पे आ रहा है. आईवी कैथेटर्स कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो मोस्टली
पेशेंट्स में हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन, एक्सट्रावाजेशन, डिसलॉजमेंट, साइट इन्फेक्शन, सेप्सिस, ऑक्लूजन एंड मैकेनिकल फेलियर, जिसमें से मोस्ट कॉमनली ऑक्लूजन एंड मैकेनिकल फेलियर का प्रॉब्लम है, जिसमें नीडल प्रिकिंग और एंगल के इश्यूज हो जाते हैं। सेप्सिस वगैरह कॉज होने के परसेंटेज आपके सामने है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हियर इज द केस। इसमें एक रोड एक्सीडेंट का केस है जिसमें पेशेंट सफर हुआ है, रोड एक्सीडेंट है, तो ईएमटी कॉल कर रहा है फार्मेसी को। उसकी क्वेरी है कि ब्लड प्रेशर उसका डाउन हुआ है 90 to 60 और उसको एडमिनिस्टर करना चाह रहे हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको देखें और यू हैव 10 seconds and you can drop your answer in comment section कि which one is correct. The first one is central catheter is made for norepi. Second one is peripheral catheter should be employed with extra ports. Both IV access would work in this patient. Yeah, norepinephrine is contraindicated in this particular situation. So the answer is both IV access would work in this patient. क्योंकि सबसे पहले तो अगर फर्स्ट उसकी बात की जाए तो सेंट्रल कैथेटर इज मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी। लाइक हम इसको आईवी पेरिफेरल लाइन से भी दे सकते हैं और सेंट्रल एक्सेस के थ्रू भी दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए एम्प्लॉयड विद एक्स्ट्रा पॉट्स की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो हम इसमें इतना एक्स्ट्रा वेट नहीं कर सकते पेशेंट को एक्स्ट्रा पॉट्स के लिए। और नॉरएपिनेफ्रिन इज कंट्राइंडिकेटेड, तो ये बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड नहीं है। So the suitable answer is both IV access would work in this patient. Next slide. Types of IV fluids, हमारे पास 2 तरीके के basic fluids हैं. The first one is crystalloids and the second one is colloids. बात करते हैं crystalloids की. We have 3 types of fluids: hypertonic fluids, isotonic fluids and hypertonic fluids. Hypertonic fluid basically are those fluids जिनमें solid की concentration ज़्यादा होती है और जिसमें हम ट्रीट करते हैं हाइपोनेट्रीमिया के पेशेंट्स को या फिर जिसमें इंक्रीजिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर को, और इसको हम देखते हैं मॉनिटरिंग हम इसकी करते हैं ईसीजी के साथ, क्योंकि क्रिटिकली इल पेशेंट्स में ईसीजी लेवल्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, इस सबको मॉनिटर करना जरूरी है। और जहाँ पे हमें ये लग रहा हो कि माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस भी पेशेंट की हेल्थ के लिए खतरा साबित हो सकती है। आइसोटोनिक फ्लूइड की अगर बात करें तो ये वो फ्लूइड्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होगी ब्लड प्लाज्मा के, विच इज इक्वल टू 0.9% NS। और इसमें 2 किस्म के हम फ्लूइड यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन, लैक्टेटेड रिंगर। नॉर्मल सलाइन हम अवॉइड करेंगे ज्यादा क्वांटिटीज में सीएचएफ के पेशेंट में, और लैक्टेटेड रिंगर की थोड़ी सी हम इसको अवॉइड करेंगे रीनल फेलियर के पेशेंट्स में। The next one is hypertonic fluids. Hypertonic fluids वो fluids हैं जिसमें solute की concentration कम होगी as compared to blood plasma, जिसमें हमारे पास 2 तरीके के मोस्टली यूज हो रहे हैं हमारी हॉस्पिटल प्रैक्टिस में। हाफ नॉर्मल सलाइन, जिसको हम आम अल्फाज में निफ सलाइन भी कहते हैं, और डेक्सट्रोज वाटर जो कि D5W के नाम से है। बेसिकली हम D5W तब देते हैं जब हमें वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है और पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है, तो वाटर रिप्लेसमेंट के लिए D5W इज द बेस्ट ऑप्शन। मूविंग नेक्स्ट इज द कोलॉइड्स। कोलॉइड्स हमारे पास वो सॉल्यूशंस हैं जिनके लिए मतलब अगर जिन पेशेंट्स को एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत हो, जहाँ पे हमें वॉल्यूम ज्यादा देना हो और वॉल्यूम की रिटेंशन ज्यादा करानी हो, उसके लिए हम कोलॉइड्स देते हैं। कोलॉइड्स में हमारे पास बेसिकली जो यूज हो रहे हैं हॉस्पिटल में एल्ब्यूमिन, हिटोस्टार, डेक्सट्रान, जालाटिन, ब्लड प्रोडक्ट्स, और इनकी एक्स्ट्रा वाटर रिटेनिंग कैपेबिलिटीज की वजह यही है कि इनकी हाफ लाइफ जो है वो ज्यादा देर तक है। लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, एनाफिलैक्सिस के रिएक्शन इसमें ज्यादा हैं, और इसमें मोस्टली केसेस देखे जाते हैं एडीमा और सीएचएफ के। आईवी फ्लूइड में अगर कंपैरिजन किया जाए इंट्रावेनस फ्लूइड्स में क्रिस्टलॉइड्स का और कोलॉइड्स का, तो जो एक सबसे बेसिक हम आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाना चाह रहे हैं, क्रिस्टलॉइड जो है हमारे पास जितना इंसर्ट करेंगे उतना बॉडी को डिलीवर नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ नॉर्मल सलाइन, अगर हम 1 लीटर बॉडी को दे रहे हैं तो उसको जो एक्चुअल मिल रहा है वो 250 मिल रहा है, बट इन केस ऑफ एल्ब्यूमिन 5% विच इज कोलॉइड, अगर हम 500 इंसर्ट करें तो 500 ही पेशेंट को मिल रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोलैलिटी, तो विच इज कवर्ड बाय आवर फार्मासिस्ट मिस्टर साद। Over to you, Saad. Saad, can you hear me?
ओए बर्फी मैं नहीं खानी नहीं लाया वापस बस हेलो, आवाज आ रही है आपको? Yes, you are audible now. Okay. अच्छा, so we're talking about osmolality. Sorry for this mishap. कुछ टेक्निकल इश्यूज थे. So whatever. Osmolality की हम बात करते हैं. Osmolality can be defined as the number of solid particles or amount of solid present per kilogram of fluid. So in a groundbreaking research paper presented by Smithline and Gardner in 1976, they presented us with this equation to calculate plasma osmolality, in which you multiply the sodium concentration by 2 and add it with glucose and urea to find your plasma osmolality. हमने लिटरेचर में भी और प्रैक्टिस में भी पढ़ा है कि ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है. सो मैथमेटिकली ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैरिटी आर ओनली डिफर्ड बाय लेस देन 1%. ठीक है, तो the difference is not clinically significant. You can use those terms interchangeably as well. प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट अगर करेंगे तो नॉर्मल पेशेंट्स में, नॉर्मल कंडीशंस में, इट वुड बी इक्वल टू 275 to 290 मिली ऑस्मोल्स पर केजी.
कोरिलेट करते हैं इसके इन्फ्लुएंस को, हाउ वुड इट इन्फ्लुएंसेस, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका ये है, ऑस्मोलैरिटी को आप हमेशा सॉल्यूट से कॉरेस्पॉन्ड करें. हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी वुड मीन हाई सॉल्यूट concentration in the plasma which would cause an introduction of water from the surrounding tissues into the vascular space which causes cellular shrinkage and dehydration. Conversely, low plasma osmolarity would mean low solute concentration and a higher water concentration, which would cause a drive of water into the into the tissue compartment, that is fluid in flux, causing edema and bursting of the cells. अगर IV fluid की बात करें, how would you calculate osmolarity of an IV fluid? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वैसे तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बट सिंपलेस्ट वन इज यू टेक द अमाउंट ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन 1 liter of the fluid divided by its molecular weight and then multiplied by 1000 and osmose. 1000 हमने इसलिए किया ताकि मिली ऑस्मोस में आंसर है, और ऑस्मोस से इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज ऑस्मोस डिफाइन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन टू सॉल्यूशन आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन. अगर आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं है, आपके पास एमईक्यूज में एमएमओएस में कंडीशन है, तो आप इसको किस तरह करेंगे कि यू टेक द एमईक्यूज ऑफ द सॉल्यूट एंड मल्टीप्लाई its molecular weight and then divide the answer by 1000 to remove milli from the milli equivalent. That would give you the gram equivalent weight and you could put it into the previous formula to find out the osmolarity of the solution. अगर हम इसकी बात एग्जांपल की बात करें, you can calculate the osmolarity of 0.9% normal saline as 9 gram per liter divided by 58.5 molecular weight multiplied by 2 osmose sodium and chloride and then multiplied by 1000. The resultant answer would be 307.69 milliosmoles per liter. Now the commercially available products of sodium chloride solutions are 93% dissociative. So you can also multiply it by osmotic coefficient 0.93. But it may or may not be available with all kinds of products that are available in the market currently. So it wouldn't matter if you multiply it by or not. Both conditions में आप देख सकते हैं कि इसकी osmolarity जो है वो isotonic ही है. This brings us to our next question, that is dextrose 50% and dextrose 50% को हम D50 भी कहते हैं, D50 भी कहते हैं. It has an osmolarity of what? तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, either it is 277, 2144 or 2525 milliosmoles per liter. You can take dextrose's molecular weight as 180 gram per mole. You guys have 10 seconds to calculate and give us the answer so we can proceed. All those of you who got the answer 2525, congratulations, you were the lucky guys because you had the answer correct. याद रखना है, हमने डेक्सट्रोज की ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट नहीं करनी, हमने डेक्सट्रोज वाटर की ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करनी. तो आपने इसके ना वाटर का वेट भी ऐड करना है, 18 which corresponds to the total molecular weight 190 gram per mole. Another question, dextrose 5% is slightly a hypertonic solution, but normal saline is an isotonic fluid. If we mix them together to get the combined product commercially available as DS or D5NS, the resultant solution is isotonic, hypotonic, or hypertonic solution. The answer is hypertonic solution because when you add 252 and 287, you get something like 530 something. So that is way more hypertonic than the isotonic range that we read previously. So the resultant solution would be a hypertonic solution. So now we're going to talk about fluid requirements. Fluid requirements की बात करें तो this is a distribution of body fluid compartments of a 70 kg adult man. You can see like के 42 liters के total body weight में से 3 liters जो है that is only available as your intravascular fluid plasma, and you can add 2 more liters into it to get your 5 liters of blood. वो 2 लीटर जो आपके red blood cells और दूसरे जो blood organelles हैं उससे बनता है. जबकि extracellularly there is a wide amount of fluid present, that is 11 liter, which corresponds to about 10.5 liters of fluid that is present in between your tissues as lymphatic fluid and water. 10.5 liter. The intake output की बात करें तो you can see that output में the major contender here is the urine, which corresponds to about 60% of your total body output, amounting to about 1.5 liters per day. इसके बाद जो second most है, that is 28% that you lose insensibly via skin through perspiration and sweating and lungs through respiration. तो ये दो factors हमें आगे चल के जो है बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और ये clinically भी हम इन दो चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा use करते हैं. Plasma osmolality determinants की बात करें, there are two types of ion, cations and anions. So if you're talking about plasma osmolality, यानी extracellular fluid में जो osmolality है, that is
characterized by sodium and chloride ion concentration. जबकि intracellularly potassium, phosphate, sulfate and protein ions are the major determinants of osmolality. इनकी disturbance से जो है वो आपके पास hypertonic, hypotonic conditions को result. Fluid requirements final. पता कैसे चलेगा कि patient को fluid required है कि नहीं? So you can say the patient is dehydrated if signs and symptoms are present. And when does the signs and symptoms present themselves? Whenever at least 50% or more, which corresponds to about 750 milliliters of your blood volume, is lost from the body due to any pathological or non-pathological condition. So the signs and symptoms of such dehydration include tachycardia, hypotension, orthostatic changes, increased ratio of your blood urine nitrogen and serum creatinine that exceeds the ratio of 20:1. Physically, you can get dry mucous membrane, delayed capillary refill, decreased skin turgor and reduced urine output coupled with dizziness. इसके अलावा ये तो सारे डिहाइड्रेशन के साइन है, बट यू कैन ऑल्सो सी कि अगर ऐसे पेशेंट्स में आप एक फ्लूइड चैलेंज देते हैं तो आप उस यानी फ्लूइड बोलस देते हैं, फ्लूइड चैलेंज देते हैं, तो यू कैन सी एन इंप्रूवमेंट इन देयर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर. तो दिस मींस द पेशेंट वाज डिहाइड्रेटेड इन द फर्स्ट प्लेस. Pediatrics की बात करें, boluses can be given from as low as 10 milliliters per kg to as much as 30 milliliters per kg, obviously in very severe conditions where there's hypovolemic shock, septic shock or excessive bleeding where there's plasma volume reduction, we can go to 30 ml per kg. मेंटेनेंस के लिए जो है वो हम हॉलिडे सिगार फार्मूला को यूज करते हैं गिवन इन 1957, जिसमें हम ये कहते हैं कि इन्फेंट्स में द डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट इज 100 ml per kg, जबकि वो लोग जो कि 10 kg से एक्सीड होते हैं वेट में, उनकी डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट में 1000 ml per day इज कांस्टेंट एंड देन यू गिव 50 ml per kg फॉर एवरी kg दैट एक्सीड्स 10 kg. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेशेंट 15 kg का है तो 1000 ml जो है वो उसका कांस्टेंट है एंड देन फॉर द नेक्स्ट 5 kg यू रिप्लेस 50 ml फॉर ईच kg. सिमिलरली अगर पेशेंट जो है 20 kg से अबव का है तो 1500 ml जो है उसका कांस्टेंट हो जाता है. ऑल केसेस आपके पास मैक्सिमम जो डेली रिक्वायरमेंट है फॉर अ फ्लूइड इज 2.5 लीटर्स पर डे. अडल्ट्स की बात करें, बोलिसिस कैन बी गिवन टू एज मच एज 500 ml to 1 liter ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स. मेंटेनेंस पे हम 1500 ml को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए 20 ml पर kg के लिहाज से फर्दर वेट्स को उसको रिससिटेट करते हैं या मेंटेन करते हैं. या इन अनदर अप्रोच यू कैन जस्ट टेक 20 to 40 ml per kg per day of total adult body weight to be taken as fluid requirement. अच्छा, जो भी आपके पास इसका आंसर आएगा, you have to divide that volume by 24 to get ml per hour rate of infusion and then you can further divide it by 60 to get an ml per minute rate of infusion. लेकिन simplicity के लिए, practical approach के लिए, adults में usually IV fluids 50 या 75 या 100 ml per hour के उससे जो है हम इसको दे रहे होते हैं. Burns की बात करते हैं. Burns is a very critical situation because due to the loss of subcutaneous tissue and fat layers of your body, there is an ongoing exaggerated amount of fluid loss because उसको रोकने के लिए, water retention के लिए आपके अल्लाह ताला ने जो एक natural layer दी है वो आपके पास नहीं बचती. So we have to treat such patients aggressively. उसके लिए पार्कलैंड ने हमको एक formula दिया, that is 4 ml multiplied by body weight and then multiplied by total body surface area that is burned. तो जो भी आंसर आता है उसमें से फर्स्ट 8 hours में जो है वो हाफ आप फ्लूइड देते हैं एंड देन द नेक्स्ट हाफ इज गिवन ओवर 16 hours. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 80 kg का मेल पेशेंट है, उसके टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 22.5% हैज बीन बर्न ड्यू टू सम कंडीशन. सो बाय फैक्टरिंग इन ऑल दीस फैक्टर्स इनसाइड द इक्वेशन वी गेट दैट द डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन दिस पेशेंट इज 7.2 liters. तो 7.2 का हाफ यानी 3.6 liters को हम फर्स्ट 8 hours में रिप्लेस करेंगे, बट जो इसके बाद वाले 16 hours हैं उसमें बाकी हाफ उसको रिप्लेस करेंगे. Which brings us to our fourth question. Calculate the rate of fluid infusion for a 9-year-old 23 kg female. The answers are 230 ml per hour, 1560 ml per day or 65 ml per hour. Okay, the answer is 65 ml per hour. अगर आपने हॉलिडे सेकंड मेथड को सही से देखा होगा, you would identify कि पेशेंट का वेट जो 23 kg है, तो 20 kg के लिए 1500 ml उसका कांस्टेंट है, जबकि बाकी 3 kg के लिए उसको 60 ml एक्स्ट्रा देना है. सो टोटल जो है उसको 65 ml पर आवर के हिसाब से फ्लूइड चाहिएगा. The next one is hydration status. Over to Dr. Shajia.
Thank you so much, Saad. Very well explained explanations. Okay. Hydration status. हाइड्रेशन स्टेटस से बेसिकली हम असेस करेंगे कि हाउ मच इज टू मच, लाइक कितनी हाइड्रेशन कितने पेशेंट के लिए जरूरी है, और उसे हम असेस करेंगे कि आइदर द पेशेंट इज ओवरलोडेड और आइदर द पेशेंट इज डिप्लीटेड, वॉल्यूम डिप्लीटेड। तो हाइड्रेशन स्टेटस को हम असेस कर सकते हैं कुछ फैक्टर्स के साथ, जो कि हैं हमारे पास ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, मीन आर्टीरियल प्रेशर, यूरिन आउटपुट और सीरम ऑस्मोलैरिटी। ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो इट विल शो द पेशेंट इज फ्लूइड ओवरलोडेड, और अगर ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कम होगा तो पेशेंट जो शो करेगा वॉल्यूम डिप्लीशन। मीन आर्टीरियल प्रेशर की अगर बात करें, इफ इट इज 90 mmHg तो फ्लूइड ओवरलोडेड होगा, और इफ इट इज लेस देन 65 तो इट विल शो वॉल्यूम डिप्लीशन। यूरिन आउटपुट को देखते हैं। यूरिन आउटपुट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज इट इज प्लेइंग 60% ऑफ रोल इन असेसिंग। तो अगर हम पीड्स की बात करें तो इसमें नॉर्मल रेट है 1 to 1.5 ml पर kg पर और एडल्ट्स में इसका जो रेट है 0.5 to 1 ml पर kg पर और। सीरम ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे डिहाइड्रेशन शो करेगा पेशेंट, और अगर सीरम ऑस्मोलैरिटी हमें कम दिखेगी तो इट विल शो द पेशेंट इज ओवर हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन स्टेटस की तरफ आते हैं तो इसके अगर फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो अल्टरमेंटेशन दोनों में होगी, हाइपोवोलेमिया और हाइपोवोलेमिक में। लेकिन अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा तो उसकी कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि हमें शो होंगी, संकन आइज होंगी, ड्राई म्यूकोजा होगा, वेट लॉस या वेट गेन होगा एब्रप्ट। और इधर इसके साथ जो थर्ड फैक्टर है हमारे पास इनपुट आउटपुट एंड फ्लूइड बैलेंस, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इट मींस फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, और अगर ये जा रहा है नेगेटिव की तरफ तो इट मींस हमारे पास डिहाइड्रेशन हो रही है। नाउ व्हेन द फ्लूइड कम्स इनटू थर्ड स्पेसिफिक पोजीशन तो ये शो करेगा पेशेंट में बॉडी में फ्लूइड की एक्स्ट्रा रिटेंशन, जिसकी वजह से एडीमा और अनिस्कारका के प्रॉब्लम हमें नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से जनरलाइज्ड बॉडी एडीमा शो हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें हम देख रहे हैं कि 7-year-old बेबी जिसका 13 किलो वेट है वो हमारे पास पिछले 40 घंटों से केयर में है और डायरियल एपिसोड्स के साथ है। उसका ब्लड प्रेशर है हमारे पास 97/67 और उसका हार्ट रेट है 67। ही इज ऑन रिंगर लैक्टेट एट 25 ml per hour and he has made 40 ml urine output in the last 12 hours. Basic metabolic panel is pending for result. What is the appropriate course of action here? So हमारे पास 4 options हैं. You can take your time of 10 seconds and drop your answer in comment box. The first one is stop RL and infuse 0.9% NS 1 liter IV stat. Second one is wait for the results of BPM and take a decision. Increase RL to 50 ml per hour. Give RL to 50 ml IV stat. So the right answer will be give RL 250 ml IV stat. रीजन मैं आपको इसलिए बता देती हूँ, आरएल को स्टॉप करके इन्फ्यूज करना नॉर्मल सलाइन के ऊपर, ये तो सबसे पहले इसमें जो हमें बेसिक गलत चीज नजर आ रही है वो ये है कि 1 लीटर आईवी स्टैट जाती ही डोज एडल्ट पेशेंट में है तो ये पेशेंट पीड्स का है, तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। लैब्स के लिए वेट करना वैसे बेतुका है क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है, तो उसके लिए वेट करना, लैब्स का वेट करना, इट इज रॉन्ग। और इंक्रीज आरएल ये भी एक केस हो सकता है, लेकिन उस सूरत में अगर तो हम इसको पेशेंट को आरएल दें और उसके बाद इसकी मॉनिटरिंग करें एंड देन वी कम टू अ रिजल्ट के यार मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर इतना हमारे पास टाइम ना हो तो ऑब्वियसली जो हमारे पास करेक्ट आंसर बच जाता है वो बच जाता है RL 250 ml IV stat. नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स। इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स में हम कवर कर रहे हैं कैल्शियम के डिसऑर्डर्स, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जो कि स्टार्ट करेंगे साथ जी। ओवर टू यू साथ। Thank you, Dr. Shajia. I guess I'm audible to all of you. So we're going to kick off the pharmacotherapy section with the disorders of sodium, right? So as we all know before, हमारे पास जो है वो sodium is a major determinant of the extracellular fluid. So अगर वो बढ़ जाता है या hypernatremia में patient जाता है तो you could say the patient is suffering from a hyperosmolar state.
and it becomes symptomatic when sodium increases from 158 MEq per liter. It leads to osmotic shift into the vascular space from the interstitium and tissues, which causes cellular dehydration. Etiological causes का आप define करें तो 3 basic categories में define हो सकता है. Either water is depleted from the body, or there is too much sodium getting inside the body, or there is too less sodium getting outside the body. हाइपोनेट्रीमिया के साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे. साइन एंड सिम्टम्स ऐसे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के जो है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के मिलते जुलते हैं. सो देयर इज नो स्पेसिफिक सिम्टम कि इसकी बेसिस पे आप कह सकें आपको इस इलेक्ट्रोलाइट की कमी है. सो द बेसिक डिफरेंस कैन बी असेस्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स. तो इसके यूजुअली जो है फीवर, रेस्टलेसनेस, एडिमा, ड्राई माउथ, स्किन फ्लशिंग, एजिटेशन, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं. अप्रोच कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द वॉल्यूम स्टेटस ऑफ द पेशेंट. आइदर द पेशेंट इज हाइपोवोलेमिक, यूवोलेमिक और इन वॉल्यूम ओवरलोड. देन यू assess the cause for that volume status कि अगर उसके एक्स्ट्रा रीनल लॉसेज हैं या रीनल लॉसेज हैं या कोई और प्रॉब्लम है, उसका कोई एक्सोजीनस आप उसको एडमिनिस्टर करें. अगर वो पेशेंट हाइपोवोलेमिक है, देन ऑलवेज गो फॉर वॉल्यूम रिप्लेशन यूजिंग सोडियम क्लोराइड और हाफ स्ट्रेंथ सोडियम क्लोराइड फॉर हीमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज, जैसे कि हाइपरटेंसिव शॉक में जाता हुआ पेशेंट है. एंड देन यू गो टू करेक्शन ऑफ टोनिसिटी बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ फ्लूइड. कैसे पता चलेगा कि रीनल या नॉन रीनल लॉस है? यू ऑलवेज चेक यूरिनरी सोडियम. अगर वो 20 MEq पर लीटर से एक्सीड कर रहा है तो दिस मींस दैट देयर इज रीनल लॉसेस. तो वो फिर उसको फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन है आगे. लेकिन अगर वो लेस देन 10 या लेस देन 15 है तो दैट मींस कि देयर इज एन एक्स्ट्रा रीनल लॉस ऑफ सोडियम गोइंग ऑन समवेयर इन द बॉडी. सो अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक है तो आप सबसे पहले जो हमारा स्टुअर्डशिप पॉइंट है वो क्या कहता है कि आप उसको फ्लूइड दोगे और फ्लूइड देने के बाद जो है उसको रीअसेस करोगे. अगर पेशेंट यूवोलेमिक है तो उसको जस्ट आप वाटर दोगे ताकि डाइल्यूशनल तरीके से जो है सोडियम कम हो जाए. अगर वो हाइपोवोलेमिक है तो आप उसको डायरीज करोगे. Diuresis need to be done with strict monitoring of fluid status, and there should be no rapid correction. Remember, on all asymptomatic and chronic type of patients, there is cerebral adaptation which may lead to cerebral edema and neurological damage permanently, or even leading to death if there is rapid correction. So cautiously खेलना है, किस तरह काम करना है, free water deficit find out करना है, and then using this equation, and then by using this equation जब आपने free water deficit निकाल लिया, you have to replace it over a few days, not very quickly, over a few days. Patient hypotensive or dehydrated, always hydrate the patient regardless कि वो hypernatremia में या hyponatremia में. You should give 0.9% for fluid resuscitation, but if you want to give water giving fluids, you should allow the patient orally on salt free water. अगर वो orally नहीं ले सकता, you should start dextrose 5%, which gives free water and free energy as well. या अगर patient के ongoing sodium losses भी हैं, for example diarrhea या vomiting के, तो you give DS या DS half. इसमें उसको डेक्सट्रोज भी मिलेगा और सलाइन भी मिलेगा. If the patient appears hypervolemic, you stop all the water and then use diuresis, for which you have loop diuretics as your drug of choice. Remember, the rate should not exceed 0.5 MEq per liter per hour या 12 MEq per liter per day. हाइपोनेट्रीमिया की बात करते हैं. हाइपोनेट्रीमिया is characterized by delirium, seizures, coma and death when it gets reduced to about 115 MEq per liter. It leads to osmotic shift into the cellular space, causing cellular swelling, cerebral edema, increased intracranial pressure. Etiology की बात करेंगे, it could be due to excessive water or increased output of sodium from the body. It could be depletional and dilutional, could be due to a number of conditions like nephrotic syndrome, cirrhosis, CHF, pancreatitis, vomiting, and so on. इसके अंदर भी सेम उसी तरह अप्रोच पे काम करना है. वॉल्यूम स्टेटस देखना है, हाइपोवोलेमिक है, यूवोलेमिक है, हाइपरवोलेमिक है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोनिसिटी बाय यूजिंग सीरम ऑस्मोलैरिटी, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपने उसको काम करना है. द ट्रू हाइपोनेट्रीमिया इज कॉल्ड हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, जो कि इस चार्ट के फर्स्ट कॉलम में ट्रीटमेंट उसकी डिफाइंड है कि यू शुड स्टार्ट विद फ्लूइड रिससिटेशन and then you should give oral salt supplements. और अगर oral salt supplements से नहीं वो सही हो तो you should start IV saline. वही बात आ गई कि स्मिथलाइन गार्डनर फॉर्मूला से आप ऑस्मोलैरिटी चेक करते हैं, यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक करते हैं फॉर यूरिनरी लॉसेस. ट्रू हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए जो है वो आप HTS यूज करते हैं इफ देयर इज लाइफ थ्रेटनिंग और सिम्प्टोमेटिक कंडीशन. वहाँ पे हम फ्री बॉडी वाटर यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम सोडियम डेफिसिट निकालेंगे इस फॉर्मूला से, जो लीन बॉडी वेट और बॉडी फ्रैक्शन ऑफ वाटर को जो है एम्प्लॉय करता है. एंड देन यूजिंग दिस वन यू पुट इट इनटू द सेकंड इक्वेशन व्हिच gives you the rate of infusion set for 3% hypertonic saline. So if we have a 50 kg male with a 119 MEq per liter serum sodium,
You could assess the sodium deficit as sodium deficit 140 minus serum sodium multiplied by lean body weight and then your fraction of body water. इसके अंदर हम अपने वैल्यूज रखेंगे तो हमें पता चला इस कंडीशन में, इस पेशेंट में हमारे पास सोडियम डेफिसिट 630 मिलीएटर्स. देन यूजिंग दिस इक्वेशन हमें पता है कि हम इसके अंदर अगर रखेंगे तो हमें क्या आंसर आएगा. हमारे पास रेट ऑफ इन्फ्यूजन आएगा 3% हाइपरटोनिक सलाइन का, विच कंटेन्स अबाउट 513 मिलीक्यूलेंट्स of sodium and chloride per liter. So if we start 3% HTS in this specific patient at 40 ml per hour, then we can have a 12 MEQ per liter correction per day, जो कि within normal limits में आता है. Remember, the goal is not to correct the serum sodium. You have to gradually normalize the levels. You do not have to correct it right away. जैसे पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस अचीव होगा, उसके जो ADH है वो रिलीज होना बंद हो जाएगा, विच वुड आल्सो कॉज द बॉडी टू रैपिडली नॉर्मलाइज द सोडियम ऑन इट्स ओन, जिसकी वजह से जो है वो और ज्यादा रैपिड नॉर्मलाइजेशन होगी. अगर उसमें आपका रेट जो है वो गलत हुआ तो पेशेंट वुड गो इनटू सिवियर प्रॉब्लम्स. अच्छा, इसमें ये भी होता है हाइपोकैलेमिया के अगर पेशेंट्स होते हैं तो क्रॉनिक हाइपोकैलेमिया में सोडियम जो है वो सेल के अंदर चले आता है टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, टू एक ज़्यूडो हाइपोनेट्रीमिया टाइप एक कंडीशन बनती है. So potassium replacement in such patients will also result in rapid normalization of sodium without any infusion of hypertonic saline. One approach जो हमारे इंस्टीट्यूट में usually follow होती है, that is to use 3% hypertonic saline to get sodium to 120-125 MEQ per liter, and after this we switch patient to oral salt water, और फिर उससे जो है वो हम उसको gradually over 2 to 3 days 4 days हम उसको correct करते हैं. ओवरजेरस रिप्लेसमेंट से क्या होगा आपके सामने है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम और पोंटाइन माइलिनोलाइसिस, आल्सो कॉल्ड हाइपोनेट्रेमिक एन्सेफेलोपैथी. होता क्या है, जब बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है तो उस पानी को जो सेरिब्रल वॉल्यूम होता है वो बढ़ाने में काम आता है, जो सेरिब्रल टिश्यू होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कॉजिंग एन इंक्रीज इन साइज. लेकिन ये ग्रेजुअली होता है तो इतना पता नहीं चलता. दिस इज कॉल्ड सेरिब्रल अडेप्टेशन. जब आप उसको हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं तो वो वाटर एकदम से लीव आउट होता है फ्रॉम योर ब्रेन, विच कॉजेज श्रिंकेज, एंड श्रिंकेज की वजह से जो माइलिन शीट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, कॉजिंग परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज एंड इवन डेथ. Now disorders of potassium will be discussed by Dr. Shajia. So madam, over to you. Thank you so much, Saad. Disorders of potassium में we have to cover obviously hyperkalemia and hypokalemia. Next slide. नॉर्मल लेवल्स के बारे में अगर बात की जाए तो मेंटली टाइटली इट इज मेंटेन बिटवीन 3.5 to 5 MEQ per liter, जो कि इन्फ्लुएंस हो सकते हैं बीटा 2 एडिनर्जिक स्टिमुलेशन से, इंसुलिन से, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से, पैसिव शिफ्ट के साथ. डिसऑर्डर्स में हम इसको हाइपरकैलेमिया में देखते हैं कि जब पोटेंशियली पोटेशियम का जो रेट है वो सीरम में 7 MEQ पर लीटर से भी ज्यादा होता है, तो उसको उस टर्म को हम लीथल करार देते हैं हाइपरकैलेमिया की स्टेट में. कॉजेज की अगर बात करें तो कॉजेज में हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास इनटेक के भी कॉजेज हैं, कुछ मेडिकेशन के भी कॉजेज हैं, ट्रांसलेटर शिफ्ट के भी कॉजेज हैं. अगर मेडिकेशन वाइज बात की जाए तो इसमें हमारे पास एसीज, ARBs, राइजोक्सिन, बीटा ब्लॉकर्स, हेपारिन और इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स ऑब्वियसली. और अगर इनटेक की बात की जाए तो ऐसी चीजें जिसमें हमारे पास पोटेशियम की मिकदार ज्यादा है वो लेने से भी हमारी पोटेशियम हाइपरकैलेमिया की स्टेटस होती है. और ऑब्वियसली अगर पेशेंट होगा विद एक्यूट रीनल फेलियर या एंड स्टेज रीनल तो इसमें पोटेशियम की मिकदार ज्यादा होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. एमर्जेंट हाइपरकैलेमिया ट्रीटमेंट. यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर पोटेशियम लेवल्स हैं ग्रेटर देन 6.5 तो उसको हम मॉनिटर करेंगे लाजमी ECG से. ECG के चेंजेस को हम नोट करेंगे. अगर तो ECG में चेंज नहीं है तो हम उसको ट्रीट करेंगे इंसुलिन के साथ, बीटा एगोनिस्ट के साथ, सोडियम बाइकार्ब के साथ. बट इफ देयर आर स्लाइटली चेंजेस इन ECG हम उसको ट्रीट करेंगे IV कैल्शियम के साथ. और उसके जो बाकी कैल्शियम जो पोटेशियम हमारे पास सेल्स में होगा उसको हम रिमूव करेंगे डिफरेंट उससे, लाइक इट कैन बी ऑरल, इट कैन बी IV. बट IV की जो हमारे पास गाइडलाइंस है एडल्ट्स और पीड्स में, जिसमें हमारे पास कैल्शियम ग्लूकोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड, इंसुलिन, एल्ब्यूटेरॉल, फुरोसेमाइड, सोडियम पॉलीस्टाइरीन और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. डोजेज आपके पास गिवन है एडल्ट्स और पीड्स में.
यहाँ पे सोडियम पॉलीस्टाइरीन हम उसको ओरल में भी दे सकते हैं और रेक्टल में भी दे सकते हैं। फ्यूरोसेमाइड की जो नॉर्मल डोज होगी एडल्ट्स में 40 to 60 हो जाएगी, पीड्स में 1 to 6 मिलीग्राम पर केजी हो जाएगी। स्टीवर्डशिप पॉइंट की तरफ अगर हम देखें तो कैल्शियम ग्लूकोनेट को प्रेफर किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड पे ड्यू टू कोरोसिव प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। और इसमें हम डोजेस बता सकते हैं आपको कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। जो पेशेंट डाइजॉक्सिन पर हो, जिनकी हिस्ट्री हो ऑलरेडी डाइजॉक्सिन यूज कर रहे हो, उसके लिए हम अवॉइड करेंगे कैल्शियम को एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी। और जब हम देखते हैं कि पोटेशियम लेवल्स हमारे पास डाउन होकर लाइक इट इज बिलो 6.5 MEQ पर लीटर, तो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं ऑरल पे। ऑरल में हमारे पास मोस्टली आ जाता है SPS सोडियम पॉलीस्टाइरीन ऑरल सोल्यूशन। और ट्रीटमेंट को हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो चाहे एसिम्टोमेटिक हो, जब पोटेशियम के लेवल्स इनहेंस होंगे 6.5 MEQ से। डेक्सट्रोज के साथ भी हम इसको डील कर सकते हैं। द डोज ऑफ डेक्सट्रोज विल बी 100 ग्राम IV विद इंसुलिन, लेकिन उस सूरत में जब पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी हाइपरग्लाइसेमिक नहीं होगा। हाइड्रेट करना है हमने उन पेशेंट्स को जो कि फ्यूरोसेमाइड पे होंगे, ऑब्वियसली डायरेटिक है तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हमने उसको हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया के अगर कॉजेज देखी जाए तो इसमें वॉमिटिंग, डायरिया, स्टोमा, डायलिसिस, ड्रग इंड्यूस्ड में इसमें हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि हाइपोकैलेमिया कॉज करती हैं, मोस्ट कॉमनली कोलिस्टिन, एम्फोटेरेसिन, लेक्सेटिव्स। डिसऑर्डर्स में हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। प्लाज्मा लेवल अगर पोटेशियम का है 3 to 3.5 तो इसकी ट्रीटमेंट होगी ओरल पोटेशियम के साथ और पोटेशियम क्लोराइड के साथ, जिसकी डोज होगी 40 to 80 MEQ। इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर हम डोज दे रहे हैं 60 MEQ या उससे ग्रेटर, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि गाइडलाइंस जैसे हमें बता रही हैं कि हम उसको डिवाइड करेंगे 2 to 3 डिफरेंट डोजेस में, ताकि उसमें हमारे पास गैस्ट्रिक इश्यूज ना हो, एडवर्स इफेक्ट से बचा जा सके। अगर लेवल्स है हमारे पास 2.5 से 3 तो ओरल पोटेशियम हम इसको देंगे 120 MEQ और इसको एडमिनिस्टर करेंगे 10 to 20 MEQ अगर साइन सिम्टम्स हमारे पास हैं। इसी तरीके से रेंज बताई जा रही है 2 to 2.5 MEQ के लिए और लेस देन 2 के लिए भी। लेकिन इन सब ट्रीटमेंट के दौरान हमने मॉनिटर करना है ECG लेवल्स को, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इट बिफोर के माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस भी हमारे कार्डिक फंक्शन को इफेक्ट कर सकता है, तो ECG मॉनिटरिंग इज कंपल्सरी। One is important point is here कैल्शियम, हम इसको हमारे पास दो तरीके की है, पोटेशियम सिट्रेट भी है और पोटेशियम क्लोराइड भी है, या फिर हम कह लें कि पोटेशियम फॉस्फेट भी है। पोटेशियम क्लोराइड को हम स्विच करेंगे पोटेशियम सिट्रेट पे और पोटेशियम फॉस्फेट पे उस सूरत में जब हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे हाइपरकोलेमिक एसिडोसिस के। हाइपोकैलेमिया की अगर स्टीवर्डशिप पॉइंट्स को डिस्कस किया जाए तो सेंट्रल लाइन को हम इसको मेंटेन करेंगे 40 MEQ पर आवर से, पेरिफेरल लाइन को हम करेंगे 10 MEQ पर आवर से। मेंटेन करना है पोटेशियम की रिक्वायरमेंट विच इज 1 MEQ पर kg पर डे। यहाँ पे हम पोटेशियम डेफिसिट फैक्टर आपको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं थ्रू इक्वेशन एज पर शोन इन स्लाइड। पोटेशियम सिट्रेट को हम उन पेशेंट्स में रेकमेंड नहीं करेंगे जो रीनल इम्पेयरमेंट के साथ होंगे, एंड स्टेज पे होंगे, जिनके सीरम क्रेटिनिन लेवल्स डिस्टर्ब हुए होंगे ऑब्वियसली। और इसका एक अच्छा ऑप्शन ये है कि हाइपोमैग्नीसिया की ट्रीटमेंट के साथ साथ ऑटोमेटिकली हाइपोकैलेमिया को भी ट्रीट किया जा सकता है। और साथ में ECG मॉनिटरिंग एज आई हैव डिस्कस बिफोर, अगर इसका रेट जो है पोटेशियम का 10 MEQ पर और से ज्यादा हम चला रहे हैं तो ECG मॉनिटरिंग इज मस्ट। डिसऑर्डर्स ऑफ मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम है हमारे पास हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपरमैग्नीसीमिया है। नॉर्मल लेवल्स हैं हमारे पास 1.7 से 2.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसके हमारे पास कॉजेज की अगर बात की जाए तो हमारे पास क्रॉन डिजीज में होता है, डायरिया में होता है, पैनक्रेटिस एक वजह हो सकती है, हाइपोकैलेमिया एक वजह हो सकती है, एंड ऑब्वियसली ओल्डर एज इज द बेसिक फैक्टर। और ड्रग इंड्यूस में हमारे पास आ जाएंगे लेक्सेटिव्स, डायरेटिक्स, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, एम्फोटेरेसिन एंड सिस्प्लेटिन। नॉर्मल वैल्यू डिसऑर्डर्स की तरफ देखें तो अगर हम इसको मैनेज करने की बात है तो मैग्नीशियम सल्फेट है हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस जो हम यूज करते हैं हॉस्पिटल में। एडल्ट्स की जो डोज है इसमें आएगी 1 to 4 ग्राम IV स्टार्ट ओवर 20 मिनट्स। इसको रिपीट करेंगे और मेंटेन करेंगे 1 ग्राम IV पर 6 आवर। और अगर हमारे पास पेशेंट होगा कार्डियक एरिथमिया का, और उसमें हम कार्डियक एरिथमिया के केस में हम इसको दे सकते हैं 1 ग्राम पर आवर के हिसाब से, यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से पीड्स में हमारे पास जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 50 मिलीग्राम पर kg IV स्टार्ट, एंड इट विल इन्फ्यूज ओवर 20 मिनट्स, रिपीट इफ नीडेड।
जो हमारे पास मेंटेनेंस डोज है इसकी वो है 50 मिलीग्राम पर केजी आईवी, और इसको हम इन्फ्यूज कर रहे हैं ओवर 6 आवर्स। और एस्थमा में भी इंडिकेशन है जिसकी हम यूज कर सकते हैं 50 मिलीग्राम पर केजी पर आवर फॉर 4 आवर्स। मैक्सिमम डोज एडल्ट्स में हम देते हैं 4 ग्राम पर डोज, लेकिन पर डे में 8 ग्राम से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। एंड सेम इज द केस विद पीडियाट्रिक्स, पर डोज हम 2 ग्राम देंगे, बट इट्स मैक्सिमम डोज विल बी 8 ग्राम पर डे, 8 ग्राम से ज्यादा नहीं देना चाहिए। हाइपोमैग्नीसीमिया में अगर इसके स्टीवर्डशिप पॉइंट्स की बात की जाए तो 1 मिलीमोल इज इक्वल टू 2 MEQ, विच इज इक्वल टू 24 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ऑरल ऑप्शन में हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एज यू नो एंटासिड सिरप्स के फॉर्म में मौजूद है। और इसमें जो एक बेसिक पॉइंट है कंसीडर करने वाला वो ये है कि हम मैग्नीशियम को कभी भी रैपिड इन्फ्यूजन में नहीं देंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि ये एक्सेसिव रेनल लॉस कॉज करेगा। और हाइपोमैग्नीसियम हम इसको करेक्ट करेंगे 3 to 5 डेज तक। लाइक इट इज नॉट लाइक आपने उसको दिया और उसको छोड़ दिया, नो, यू हैव टू कीप इट ऑन अ मेंटेनेंस डोज। और उसमें जो हमारे पास बेसिक हम साइन सिम्टम्स नजर आते हैं डायरिया के और मस्कुलर स्पाज्म के। मस्कुलर स्पाज्म हम नॉर्मल कंडीशन में भी दे सकते हैं मैग्नीशियम देते वक्त, उस सूरत में जब पेशेंट सेंसिटिव हो मैग्नीशियम के साथ। और ऑब्वियसली रीनल डिस्फंक्शन में हम जिसकी डोज है मैग्नीशियम की वो हम इसको रिड्यूस कर देंगे अप टू 50%। लाइक 2 ग्राम दे रहे हैं तो 1 ग्राम पे आ जाएंगे, 1 ग्राम है तो 500 मिलीग्राम। हाइपर मैग्नीसीमिया मेनली एसोसिएटेड विद सीकेडी एंड रीनल फेलियर ऑब्वियसली। और इसका जो एक और फैक्टर वो ये भी है कि हम मैग्नीशियम की जब एक्सेस अमाउंट लेते हैं, लाइक उसमें हम आइदर इट इज फूड और आइदर इट इज सप्लीमेंट्स और आइदर इट इज थ्रू एंटासिड सिरप, जो कि इसका ऑब्वियसली अब्यूज हो जाएगा। तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट प्लान में सबसे पहले तो मैग्नीशियम के जितने भी सोर्सेज हैं उनको हमने स्टॉप करना है। तो फर्स्ट वन इज दैट नॉर्मल रेनल फंक्शन में हम इसको ट्रीट इस तरीके से करेंगे कि डायरेटिक्स के साथ हम कॉम्बिनेशन देंगे 0.9% NS का ऑब्वियसली, जिसमें हम फुरासेमाइड के साथ कंबाइन करेंगे। और अगर रीनल फंक्शन हमारे पास डी रेंज होंगे तो हम उसको मूव करेंगे हीमोडायलिसिस की तरफ। एंड इन केस ऑफ कार्डियक एरिथमियाज हम कंसिडर करेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट को। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ फास्फोरस को, विच विल बी डिस्कस्ड बाय मिस्टर साद। सो ओवर टू यू साद। थैंक यू मैडम। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ फास्फोरस की। जल्दी जल्दी आके चलते हैं। नॉर्मल रेंज 2.5 to 4.5 मिलीग्राम्स पर डीएल की एटियोलॉजी यूजुअली hyperphosphatemia. Hyperphosphatemia is not really that much prevalent in patients, but it could be due to a number of syndromes. जैसे refeeding syndrome is one of the most prevalent causes, alcoholism, and it could also be drug induced. ट्रीटमेंट, आपने कोई भी फॉस्फेट का आपके पास सप्लीमेंट हो, यू हैव टू गिव इट बाय 0.5 mmol per kg over 3 to 6 hours, not to exceed 7.5 millimoles per hour of rate of infusion, and up to 60 millimoles of phosphate can be given per day. Orally इतना अच्छा absorb नहीं होता, but there are 2 solutions present, that are sodium phosphate and potassium phosphate. इनकी oral solutions आती हैं। और अगर किसी को सोडियम फॉस्फेट सोल्यूशन का नाम पता है तो प्लीज डू ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स ऑन यूट्यूब या चैट बॉक्स इनटू द ज़ूम, ताकि हमें पता चले कि आपको जो है उसका नाम पता है कि नहीं। मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, जब सोडियम फॉस्फेट पोटेशियम फॉस्फेट देते हैं तो वी शुड नॉट ओनली केयर अबाउट फॉस्फेट, वी शुड आल्सो कीप एन आई ऑन सोडियम एंड पोटेशियम कंटेंट। तो रफली देयर आर सेम 4 MEQ ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर प्रेजेंट पर 3 millimoles ऑफ फॉस्फेट। Hyperphosphatemia की बात करें, that is most commonly associated with renal failure and stage renal disease, hypoparathyroidism, and we also see in our hospital post thyroidectomy patients आते हैं तो वो hyperphosphatemia के साथ आते हैं. It may also cause hypocalcemia and potentially lethal vascular calcification that they cause by intravascular deposition of calcium and phosphate. ट्रीटमेंट क्या है? आपने ऐसे पेशेंट में सबसे पहले फॉस्फेट की रिस्ट्रिक्शन लगानी है, 1000 मिलीग्राम्स पर डे से ज़्यादा उनको डाइट अलाउ नहीं करनी। देन यू गिव देम फॉस्फेट बाइंडर्स व्हिच कुड बी कैल्शियम बेस्ड और एल्यूमिनियम बेस्ड। साथ ही साथ विटामिन डी एंड एनालॉग्स देने हैं फॉर हाइपोकैल्सीमिया और कैल्शियमेटिक्स देने हैं इन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट पेशेंट्स। अगर उससे भी आपके पास काम ना बने तो यू गो फॉर पैराथायरॉयडेक्टमी। यहाँ पे आप देख सकते हैं द फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यूजुअली आपके पास एंटासिड सिरप्स में मौजूद होता है। इट इज एन एल्यूमिनियम बेस्ड प्रोडक्ट। इसके अलावा कैल्शियम बेस्ड प्रोडक्ट्स में आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम एसिटेट आर वेरी प्रेवलेंटली यूज्ड। इसके अलावा इसका एक बेसिक पॉइंट जो है वो ये है कि आपके पास जितने भी फॉस्फेट बाइंडर्स हैं दे शुड बी टेकन विद मील्स टू हेल्प बाइंड द डाइटरी फॉस्फोरस। इसके अलावा आपके पास सिविलामिर इज यूज्ड इन एडवांस डिजीज।
अच्छा, अगर पेशेंट जो है वो CKD का है तो उसमें हाइपोफॉस्फेटेमिया को ट्रीट करने का क्या एल्गोरिथम है? अगर पेशेंट जो है वो डायलिसिस पे नहीं है तो यू शुड स्टार्ट विथ कैल्शियम बेस्ड प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसका जो हाइपोकैल्सीमिया होता है तो वो जो कैल्शियम आप दे रहे हैं उससे वो रिप्लेस हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट हाइपरकैल्सीमिया है, उसको वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन अपेरेंट है, इमेजिंग स्टडीज में देयर इज एन एडायनामिक बोन डिजीज और पैराथायराइड हार्मोन इज लेस देन 2 times, then you should avoid calcium containing products and you switch on to non calcium containing products such as sevelamer and lanthanum. लेकिन इसके अंदर भी आपने फर्दर कंसिडरेशन देखनी है। फॉर एग्जांपल जो नॉन कैल्शियम कंटेनिंग है उनका बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, और जैसे सेवेलेमर की अगर हम बात करें तो दैट इज़ अ वेरी क्रोजिव एक्शन ऑन जीआई सिस्टम। सो ये सारी जो पॉइंट्स हैं उनको आपने देखते हुए आगे फैसला लेना है। कैल्शियम की बात करते हैं। हाइपोकैल्सीमिया की अगर हम बात करें तो इट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अल्कलॉसिस एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसमें हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं दैट आर कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो हमारे पास इंजेक्टेबल फॉर्म में है। इसकी जो डोज है 1 to 2 ग्राम IV स्टार्ट एंड देन इट कुड बी मेंटेन अप टू 6 आवर्ली। कैल्शियम क्लोराइड इज नॉट दैट मच यूज कॉमनली बिकॉज ऑफ इट्स करोसिव एक्शन। पहले भी बात हुई थी। कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास जो च्यूएबल टैबलेट्स आती है कैल्शियम की, दीज आर दोज। You should evaluate the corrected calcium levels in such conditions because alkalosis के treatment की condition में, hypoalbuminemia की condition में आपका calcium जो है it could be falsely elevated or down regulated, तो उसके वजह से आपके treatment पे effect पड़ सकता है। तो you should always calculate corrected calcium and then treat accordingly। अगर आप 60 milligrams of elemental calcium per minute से ज़्यादा तेज infuse करोगे तो that would lead patient to asystole, hypotension, bradycardia and even death। Calcium chloride ideally requires central access due to its highly corrosive action. Contrastingly, calcium gluconate can be given peripherally up to 4 gram per dose. तो ये इतना जो है वो सेफ है। एसिम्प्टोमेटिक को आप ओरल से ट्रीट करेंगे, जबकि नॉन मतलब जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको आप IV से स्टार्ट करके ओरल पे स्विच करेंगे। पेशेंट्स शुड आल्सो बी गिवन विटामिन डी सप्लीमेंटेशन टू इंक्रीज द डाइटरी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। Hypercalcemia is commonly associated with malignancy and hyperparathyroidism. It can also cause urolithiasis, vascular calcification and arrhythmias. So इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ड्रग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिस्फॉस्फोनेट्स हम देते हैं तो यू शुड ऑलवेज चेक क्रिएटिनिन एंड कैल्शियम लेवल्स बिफोर एंड आफ्टर बिकॉज इट कॉजेज अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन बोथ लेवल्स। Interestingly, denosumab gel that contains a US FDA black box warning for causing lethal hypocalcemia, and और अगर यूरोलिथियासिस का पेशेंट है तो वहाँ पे डायरेटिक्स के अंदर जो चॉइस हम देंगे एज अ फार्मासिस्ट दैट शुड बी थायराइड बिकॉज इट कॉजेज इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन। पोटेशियम सिट्रेट भी हम दे सकते हैं कैल्शियम के स्टोन को डिसॉल्व कराने के लिए। हाइपरकैल्सीमिया की प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर हम स्टार्ट करेंगे, वी शुड गिव नॉर्मल सलाइन, द पेशेंट शुड rehydrate the patient as well as to increase the excretion of calcium from the body। कैल्सिटोनिन भी दे सकते हैं, पैमिडोनेट एंड जोलिडोनिक एसिड और बिस्फॉस्फोनेट। जोलिडोनिक एसिड इज 10,000 times more potent and पैमिडोनेट कैन आल्सो बी गिवन इन CKD पेशेंट्स, तो आप उसको इजीली उस पेशेंट में दे सकते हैं। डेनिसोमैब हैज अ मच लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैन आल्सो बी गिवन इन सच कंडीशन, और उनकी वैसे ऑनसेट जो है वो बहुत डिलेड है लेकिन उनकी ड्यूरेशन जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। Finally, towards the end of our presentation, we are going to start a case study and bust some common myths around it. So हमारे पास एक पेशेंट है AA, उसका नाम है, he is a 25-year-old male, he weighs 45 kg and he's been rushed into the ER following on and off abdominal pain in the left lower quadrant। LLQ means left lower quadrant। उसको 1 साल से ये पेन है, इसके लिए उसने ना कोई खास कोई मेडिकेशन लिए ना कोई मेडिकल एडवाइस लिए, बट पिछले 2 हफ्तों में इसका पेन प्रोग्रेसिवली बढ़ा है। विजुअल असेसमेंट्स के लिए अब ये है, इसमें आपने देखा कि 3 से वो 7 पे चला गया, आज का जो पेन है वो 7 का, जिसकी वजह से is not been able to take his diet for the last 3 days and has 3 episodes of non-projectile non-bilious vomiting। He has also had 2 episodes of loose stool last night after his mother tried to feed him something, but he denies any hematochezia, melena or any sort of blood in it। No other history is remarkable। Examination हुई, उसमें आपको पता चलता patient is not afebrile, but the blood pressure and heart rates are both tanking, 97 to 71 and 62 का heart rate है। जो respiratory rate है slightly increased है, rebound tenderness and LLQ with a palpable mass। ABG स्टार्ट कराई गई जिससे pH शो हुई 7.49, जिसका मतलब ये कि पेशेंट जो है वो
एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है, बाकी सारे लैब्स भेजिए लेकिन उनके रिजल्ट अभी नहीं आए। व्हाट डू यू थिंक इज एए's करंट प्रॉब्लम टू बी डेल्ट विद? उसके साथ अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है? If your answer is pain and dehydration, then you are correct. Obviously हमारे पास पेशेंट का जो पेन है सबसे पहले हम उसको ट्रीट करते हैं। हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल में हमारी एक डिपार्टमेंटल टाइप ऑफ सेइंग है कि यू शुड किल द पेन बिफोर पेन किल्स द पेशेंट। हमारे पास जब भी पोस्ट ऑफ पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास इस तरह के जैसे RTA ट्रॉमा वगैरह के पेशेंट्स आते हैं, we pump them full with analgesics so that they can take a sigh of relief, वो ये सुकून की सांस ले सकें। उसके बाद हम उनका स्टार्ट करते हैं बाकी की ट्रीटमेंट। सो द ER physician follows this advice and orders tramadol and ondansetron for the patient. जब तक उसको ये लग रहा है, the doctor comes to pharmacy for your opinion regarding the choice of fluid for resuscitation. क्या उसको 0.9% NS दें या उसको ringer lactate दें? तो आपका आंसर जो है वो क्या है? Should it be ringer lactate or should be normal saline? ठीक है, आई एम नॉट रियली seeing a lot of answers in the group, but majority अभी जो मैं देख रहा हूँ RL की तरफ जा रहे हैं। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। The answer is 0.9% normal saline stat. Why? Normal salines और RL दोनों most commonly used fluids हैं ER के अंदर resuscitation के लिए। बहुत commonly use होते हैं, cheap हैं और जो है वो easily infuse हो सकते हैं। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं। रिंगर लैक्टेट गिव्स लैक्टेट टू द बॉडी व्हिच इज मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर टू प्रोड्यूस 2 बाइकार्बोनेट आयंस फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट। इट आल्सो हैज 4 MEQ पर लीटर ऑफ पोटेशियम। इस वजह से अक्सर जो फिजिशियंस हैं या अक्सर जो हेल्थ केयर टीम्स हैं वो कतराती हैं उसको यूज करने में फॉर हाइपरकैलेमिक कंडीशन, बट देयर आर अ नंबर ऑफ स्टडीज प्रेजेंट इन द साइंटिफिक लिटरेचर दैट शो दैट हाइपरकैलेमिया इज नॉट एग्रेवेटेड और exacerbated और नॉट इवन कॉज्ड बाय रिंगर लैक्टेट। तो हम उसको ऐसी कंडीशंस में दे सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो दैट हैज एसिडिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू क्लोराइड आयंस एंड इज एसोसिएटेड विद हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस इफ इट इज इन्फ्यूज्ड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी और इफ इट इज गिवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। So in this patient, 0.9% normal saline is the right fluid. Why? Because as per the ABGs, he is going into alkalosis. वो metabolic alkalosis में जा रहे हैं due to rapid depletion of chloride and sodium and hydrogen ions, vomiting और diarrhea की वजह से। तो patient is going into alkalosis, ringer lactate देने से उसका alkalosis जो है aggravate होने का खदशा है। So in this condition, the correct or the stewardship point of view से the correct answer would be NS. मैं ये नहीं कह रहा कि RL इस patient में नहीं दे सकते, वो उसको दे सकते हैं, बट हमें उसको एल्कलोसिस को फर्दर एग्रेवेट होने से बचाना है। सो द बेटर चॉइस एट दिस पॉइंट इज सोडियम क्लोराइड। RL को कब यूज करें? RL is usually used for aggressive volume resuscitation, for example, or in all those conditions where there is an predisposition of acidosis, जैसे burns and sepsis है, acute pancreatitis का पेशेंट है, DKA का पेशेंट है जिसमें acidosis हो रहा है या होने वाला है, ऐसी तमाम कंडीशंस में we should employ the lactate from the ringer lactate to shuffle the pH buffer towards alkalotic. In fact, 2022 में एक स्टडी हुई जिसने उन्होंने शो किया कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन पाई जाती है रिंगर लैक्टेट के साथ फॉर हाइपरक्लोरीमिया वर्सेस नॉर्मल सलाइन। अच्छा, इनिशियल फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन फ्लूइड रिससिटेशन देने के बाद आपकी चॉइस पे मेडिकल थेरेपी पे AA की तबीयत बेहतर होना शुरू होती है। ही स्टार्टेड ऑन 0.9% NS at 100 ml per hour। इसको मेंटेन कर लें। The pain has decreased from 7 to 5 and his BP has also raised from 97 something to 110/79. उसको उल्टियाँ रुक गई हैं but he is still feeling a bit nauseous. New ABGs now show that the pH has improved from 7.49 to 7.46. जो उसका alkalosis वाला एक खतरा था वो टल गया है। जो उसकी लैब वैल्यूज हैं, रिमेंबर कि दीज लैब वैल्यूज वर टेकन बिफोर यू इन्फ्यूज्ड हिम। ये दवाइयों से पहले की है तो दीज आर ऑब्वियसली डिस्टर्ब। इसमें आप देखेंगे सोडियम इज 131, पोटेशियम इज 2.8 एंड क्लोराइड इज वेरी मच रिड्यूस्ड टू 90 एंड बाइकार्बोनेट इज इंक्रीज टू 28 व्हिच शोज शिफ्ट टुवर्ड्स मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। आरबीजीज जो है वो थोड़े से बड़े हुए हैं और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है और क्रेटिनिन का आप रेशो देख सकते हैं कि 20:1 से ज्यादा है। दिस मींस द पेशेंट वाज डिहाइड्रेटेड और सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है वो भी इस चीज को चेक करा रही है कि 290 से अबव है, देयरफॉर द पेशेंट इज हाई ऑस्मोलैरिटी की वजह से डिहाइड्रेटेड है।
So the patient is seen by the general surgery team and is planned for a CT. The CT scan and the further workup reveals that there was a mass in the sigmoid colon in the first place. So the GS team provisionally diagnoses him for sigmoid colon cancer and then plans for sigmoid colectomy and a colostomy. He is admitted for the surgery in the surgical ward from the ER 8 hours later. और उसके बाद उसकी लैब जो है दोबारा रिपीट कराई जाती हैं. ये लैब्स वो लैब्स हैं जो आपके इंटरवेंशन के बाद हुई हैं. So you can see that there is visible difference in the electrolytes. सोडियम भी बढ़ा है, पोटेशियम भी नॉर्मल की तरफ आया है, क्लोराइड भी बेटर हुआ है और जो एल्कलॉटिक बाइकार्बोनेट था वो भी नॉर्मल की तरफ रिटर्न हुआ है. आरबीजीज जो है वो देखें कि वहाँ पे 250 थे और यहाँ पे 110 है, हालांकि हमने इसके अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं की. दिस मीन्स द पेशेंट वाज सिवियरली डिहाइड्रेटेड. सिर्फ उसका वाटर हमने बढ़ाया है तो उसके आरबीजीज जो है डाइल्यूट होकर ऑटोमेटिक 110 पे आ गए हैं. BUN जो है वो 100 एंड समथिंग से वापस आया 20 पे और जो आपका रेशो था 21 का वो वापस अचीव हो गया है और सीरम ऑस्मोलैरिटी भी जो है वो आइसोटोनिक की तरफ वापस आ गया. Now the team wants pharmacy's opinion on starting maintenance fluid for this patient until the surgery is planned. So should we keep him on existing 0.9% sodium at 150 ml per hour? Should we give the patient RL bolus of 1 liter and then continue at 50 ml per hour? या should we start D5WN at 100 ml per hour या D5NS दें या पेशेंट को ओरल वाटर से स्टार्ट कराएं क्योंकि पेशेंट वाइटली तो स्टेबल हो गया, उल्टी अभी नहीं हो रही उसको. What do you think? Okay, we have our first answer, oral water. Second is also towards the oral option. Third is also towards the oral option. Fourth is option 1. Okay, oral. So the group is, tightly determined to keep the patient on the oral option. But if you can see, मैंने ये कहा कि पेशेंट जो है सर्जरी की तरफ जा रहा है, तो अभी सर्जरी तक जा रहा है, पेट की सर्जरी, तो पेशेंट जो है वो NP होता है, नील पर ओरल होता है, तो ओरल वाटर तो उसको वैसे भी नहीं देना हमने. ठीक है, अगर पेशेंट सर्जरी की तरफ नहीं जा रहा था तो यू गाइस वाज राइट, ओरल वाटर वुड हैव बीन द बेस्ट चॉइस इन ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस. So why would we consider D5NS to be started at 75 ml per hour? First option is to keep him on existing 0.9% sodium chloride at 150 ml per hour. रेट देखें, रेट कितना हाई है, हमको उसको रिससिटेट नहीं करना, हम उसको मेंटेन करना. Therefore this rate is not appropriate. Second one is give RL bolus. RL का जो रेट है वो बिल्कुल सही है, हम उसको यूज कर सकते हैं, but we have no consideration here to give RL bolus. बोलस देने की नीड ही नहीं है, पेशेंट जो है वो नॉर्मल टेंसिव हो गया, बोलस उसको लग चुका, तो अगला बोलस देने का क्या फायदा. थर्ड वन इज टू स्टार्ट D5 और चौथा जो है D5NS पे, तो उस पर आगे डिस्कशन करते हैं. D5 इटसेल्फ जो है वो 50 grams ऑफ डेक्सट्रोज देता है पर लीटर ऑफ बॉडी पर लीटर ऑफ फ्लूइड दैट इज इन्फ्यूज. 1 gram ऑफ डेक्सट्रोज that is infused in your body increases your blood glucose level by 4 to 6 milligram per deciliter, and it also gives 170 kilocalorie per liter of energy to your body free of cost. Dextrose is metabolized to give free water, लेकिन मसला ये है कि इतना ज़्यादा वाटर की वजह से फ्री मूवमेंट होती है. 1 लीटर के अंदर से सिर्फ 100 ml जो है वो इंटरवेस्कुलर वॉल्यूम में बचता है अगेंस्ट नॉर्मल सलाइन एंड रिंगर लैक्टेट जिसमें से 250 ml बचता है. दिस मीन्स डेक्सट्रोज इज नॉट अ वेरी गुड मेंटेनेंस फ्लूइड ऑन इट सेल्फ. जहाँ पे पेशेंट को एग्रेसिवली हमें फ्लूइड चाहिए होगा तो वहाँ पे डेक्सट्रोज इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देगा जितना NS एंड RL देंगे. तो फिर हम D5 को जो है वो क्यों यूज करना. अच्छा, 2020 की एक स्टडी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ. इसमें उन्होंने देखा कि D5W एज अ ड्रग डाइल्यूएंट डिड नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट वर्सेस सोडियम क्लोराइड इन क्रिटिकल केयर पेशेंट्स, लेकिन इट डिड सेव द पेशेंट्स फ्रॉम हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस. तो ये जो हमारे पीछे हाइपरग्लाइसीमिया वाली बात थी ये यहाँ से करेक्ट होती है. So the good maintenance fluid is D5NS or D5 half strength NS plus 20 to 40 MEQs of KCl per liter. मेंटेनेंस डोज में याद रखिएगा, पीडियाट्रिक्स में 0.5 MEQ per kg per day से हम देते हैं, जबकि एडल्ट्स में 1 MEQ per kg per day के हिसाब से हम मेंटेन करते हैं पोटेशियम को. ये वाला फ्लूइड देने का फायदा क्या है? इट विल गिव the patient free water, it will give the patient energy as well as basic electrolytes sodium chloride and potassium. You should remember कि ये तीनों जो आयंस हैं पेशेंट के अंदर डेफिशिएंट हैं बिकॉज ऑफ इट्स कंडीशन. तो हमें D5 भी देना है जो फ्री वाटर एनर्जी दे और NS भी देना है ताकि उसको वो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस करें. So this combination would give a much better prognosis to the patient rather than D5 alone or NS alone.
बट फिर वही बात कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज के थ्रू पेशेंट अफोर्डेबिलिटी के ऊपर और मार्केट अवेलेबिलिटी के ऊपर जो है आप इस स्पेसिफिक पेशेंट में 0.9% NS और RL भी चला सकते थे विद एंड विदाउट KCL, लेकिन स्पेसिफिक डोजेस पे जो पीछे हमने डोजेस शेयर की थी दोज वर नॉट अप्रोप्रिएट, दैट इज व्हाई वी आल्सो डिड नॉट चूज फॉर दिस ऑप्शन. So this was all. These were the references that we used. Thank you so much for joining. Dr. Shajia, do you have any concluding remarks? Dr. Shajia, can you hear me? जी साद. So I think there is nothing more to share. So Zunash, I think we should end the session. Thank you so much to both of you for your valuable insights and for the information you have shared with us. And now I request the participants, if they have any question, you may ask in the comment section below. If you have any difficulty about today's webinar, you can ask in the comment section below. Okay, sir. So there's just one question. Ji, please. Someone is asking from where I can get learning of fluid and electrolyte. Like she's saying to suggest you a book or something else. अच्छा, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. वैसे तो नॉर्मली इसकी जो आपके पास बुक्स हैं या इसके जो आप सप्लीमेंट्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स्ड हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो फैली हुई उसमें इंफॉर्मेशन है. अगर आपको कंसाइज चाहिए तो ACCP के जो बोर्ड सर्टिफिकेशन वाले नोट्स हैं उसमें इसका एक अलग से पूरा चैप्टर है PDF फॉर्म में. उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से उसको कंसाइज वे में बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन किया है, डोजेस दिए हैं और पॉइंट्स दिए हैं याद करने के कि किस तरह आपने याद करना है. तो I'll make sure कि you guys get the link of that as well. तो फिर आप उससे जो है उसको follow कर सकते. Okay, sir. Thank you. So, any other questions from any participant? Okay, sir. So there's just one question from YouTube. जी बिल्कुल. Sir, the question is, normal saline is associated with more kidney failure in pediatric patient as compared to LR. So what are your opinions on this? Okay, this is इसको मैं किस तरह बताऊं. This is a very double-edged kind of sword. असल में ऐसी जो हमारे पास स्टडीज़ हैं, ऐसी स्टडीज़ मैंने भी गो थ्रू की हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड के जो सॉल्यूशंस हैं they are associated with a higher prevalence of kidney failure, acidosis, liver failure, SIT, CHF and all that. तो it all depends. Basically देखा जाए तो it's not because of the drug. I think it's more about excessive use of the drug. हम फ्लूइड को ये समझते हैं कि पानी है तो पानी तो बंदा अपने हिसाब से कितना भी पी लो, उसको कितना भी चला दो. तो उस वजह से आपके पास केसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं. हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते थे पहले जो कि हमने अब कंट्रोल किए थ्रू आवर स्टोरशिप प्रोग्राम, जो कि थर्ड स्पेसिंग में चले आते थे, एडिमा में चले आते थे या वो हाइड्रोनेफ्रोसिस में चले आते थे ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक या एक्सेसिव फ्लूइड गिविंग. कि उनको जो है वो आप एक रेट पे चला के आपने छोड़ दिया, उसके बाद जो है भूल गए, क्योंकि इट्स नॉट अ ड्रग. अगर आप इन स्ट्रिक्ट सेंसेस में देखेंगे इट्स नॉट अ ड्रग, आप उसको पानी दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल.
तो हमें जो है वो उसकी जो नीड है, पेशेंट की कंडीशन है और हमारी जो डोज जो उसको जा रही है, 3 चीज़ें, नीड, द कंडीशन एंड द डोज, इन तीनों को हमने बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, सो वी कैन अश्योर दैट देयर आर नो साइड इफेक्ट्स विद दीज फ्लूइड्स एज वेल। कहने को ये पानी है, लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक साइड इफेक्ट्स हैं, which may even be lethal. So like every other drug, there must be therapeutic drug monitoring for fluid. This is called fluid stewardship. और ये हम अपने जो इंस्टीट्यूट में है, हम लोग इसको इंश्योर करवा रहे हैं बाय quickly switching the patient to oral intake as soon as the patient is able to take something orally or enterally. तो ये एक जो है वो एक अप्रोच है जिसके थ्रू आप इस चीज को कम कर सकते हैं. Thank you so much, sir. And I don't think that there are more questions. So there's just one announcement to make. We have our 4th annual Innovation in Pharmacy Conference on 15th and 16th September 2023. I have also provided a registration form link in the comment section below. You can check that out. And the registration is free, and we will be having it, the conference is on site in Karachi, Lahore, and Islamabad. So this is a great opportunity to connect and learn. You can also find this link on any of our social media pages. So with that, I'll just conclude the session here. Thank you so much to our respectable speakers for enriching our session with your expertise and the time and efforts you both have dedicated for delivering such remarkable presentations. Thank you for the organizing committee of Giving Back to Pharmacy in Pakistan for organizing such informative session. And lastly, thank you to the participant for listening patiently from a start to the end. I have also provided 2 of the links. The one is the feedback link where you can fill the feedback form and you will get the e-certificates, and the other link is the slides drive link where you can find these slides. So with that, that's it for today. You can also follow us on our social media pages for our upcoming updates about our sessions and conferences, which we'll be having in our future, inshallah. So with that, Jazakallah khair for today. Allah Hafiz.